Namaste Gurukulians. I hope you all are fit and fine. My name is Prashant and today we'll continue the chapter for class 10th, the rise of nationalism in Europe for class 10th history. In the previous class, we discussed that what made the word nationalism, how the concept of nationalism came into force, what was Napoleon's contribution and how did nationalism spread from France to different parts of the world. In today's lecture, in today's lesson, we will try to see the making of nationalism in Europe, means what factors contributed to the making of nationalism in Europe, and we will also share the vision of Friedrich Soreillu's worldview. Friedrich Soreillu was basically a French artist who created a series of paintings, right? And in 1848, he made paintings very visualized his dream, means सपने में उसने देखा एक ऐसा देश that was based on the concept of democracy and social republics, means where the leaders are elected by the people, where people have a rule to follow, they have a system where they go through a way or they follow a constitution. So in 1848, a French artist named Friedrich Soreillu visualized his dream of a world made up of democratic and social republics and prepared a series of 4 prints. He prepared a series of 4 prints, right? In the first print, people of Europe and America are shown marching and paying homage to the Statue of Liberty. The very first print he made, the people of America, people of Australia, paying homage. Homage means Shraddhanjali. Paying homage to the Statue of Liberty, right? This was his first view, or you can say first dream. Second, the Statue of Liberty is personified as a female figure, and now Statue of Liberty here is personified as a female figure. हम यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल फिगर मान लेते हैं, जैसे भारत माता हम कहते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी हम मान लेते हैं एक फीमेल figure है, right? So here Statue of Liberty is personified as a female figure who bears the torch of enlightenment in one hand and the charter of right in another hand. Statue of Liberty के पास 2 चीजें हैं, एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान का टॉर्च, ठीक है, दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स, चार्टर ऑफ राइट्स मीन्स जहां पर सभी लोगों के राइट्स दिए हुए हैं कि भैया किन नियमों से वो हम चलेंगे. उसके बाद अगर आप फिगर देखेंगे, यू विल सी दैट द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. जैसे जैसे लोग सोरेयूस के फिगर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखी है, बिखरी हुई चीज़ें दिखी है. सो दीज आर द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट, मतलब वो इंस्टीट्यूशंस, वो चीज़ें जो पहले एक समय बहुत ही डोमिनेटेड थी, उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान था, लेकिन आज के समय वो बिल्कुल बिखरी पड़ी है, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो. यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब वो मोनार्कियल सिस्टम जिसे लोगों ने धीरे धीरे नकार दिया.
absolutist here it refers to a government that has no restraint on the power exercised. ठीक है, so absolutist here refers to monarchical government. Absolutist here refers to monarchical government, right? So the shattered remains of the system, the shattered remains of the symbols of the absolutist institutions are shown in the foreground of the image. In the utopian views, utopian vision is such a vision which does not exist in reality, right? जिसे हम सपने में सोचते हैं या ऐसा हो, जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं कि हमारा देश करप्शन फ्री हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे देश में कोई करप्शन नहीं होगा, कोई लोग घूस नहीं लेंगे, तो एक इट इज अ यूटोपियन विजन, राइट? यूटोपियन विजन, it is a vision which does not exist in reality, a vision of society that does not exist in reality. सो बेसिकली फ्रेडरिक सोरेयू का जो ड्रीम था, जो पेंटिंग्स उसने बनाई थी, उसमें वो ये दिखाना चाहता था कि किस तरह से आने वाला समय, किस तरह से आने वाला टाइम जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन पीपल्स चॉइस। कैसे जो मोनार्कियल सिस्टम एक समय पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही होगी, कैसे किंग्स और क्वींस जिनका बहुत दबदबा रहा होगा, a time will come when all these things will get shattered away, जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, right? So the shattered remains of the symbols of absolutist institutions are shown in the foreground of the image. In the utopian vision of Soreyu, people of the world are differentiated through their flags and national costume. तो सोरेयू ने क्या किया था लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए? He used flags and he used costumes or dresses. So these were the things used by Soreyu to differentiate. अब मान लो अमेरिका का अलग फ्लैग हो गया, फ्रांस का अलग फ्लैग हो गया, जर्मनी का अलग फ्लैग हो गया, इंडिया का अलग फ्लैग हो गया, तो फ्लैग इज अ वे to differentiate the people of the country. Now second thing which differentiates the people of the country is the costume they wear. लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ये एक दूसरा तरीका होता है लोगों को डिफरेंशिएट करने का। तो सोरेयू ने इन दो चीज़ों का इस्तेमाल किया था। सो ही यूज्ड फ्लैग एंड ही यूज्ड कॉस्ट्यूम्स। द डिफरेंस which followed America and Switzerland in the procession were Germany, France, Austria and Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. So these are the country which are shown by Soreyu, जो कि लाइन से अपने अपने फ्लैग को लेकर मार्च करते जा रहे हैं फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से वो मूव करते जा रहे हैं, जहाँ पर वो झुककर सलाम कर रहे हैं, दे आर पेइंग होमेज। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ठीक सामने अगर वो देख रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है, जो ये बताता है कि एक समय ये मोनार्कियल सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्गर रहे होंगे, लेकिन आज इनका कोई वजूद नहीं रह गया, राइट। सो दिस वाज द विजन ऑफ सोरेयू। यहीं से निकलती है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहीं से लोगों के अंदर एक सोच आती है कि कैसे देश बना, देश की भावना कैसे आई और कौन से वो लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया नेशनलिज्म को बनाने में, राइट। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर ये बताऊं कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में सबसे बड़ा रोल किसका रहा होगा, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था दैट इज द राइज ऑफ
मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसलिए रहा नेशनलिज्म को बनाने में कि हम जानते थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, थर्ड एस्टेट के लोग थे, वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे और बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिलती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे जो लीडर्स थे, जो बहुत सारे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के कुछ लोग थे, उन्होंने थर्ड एस्टेट के लोगों का साथ दिया है, मिडिल क्लास लोगों का साथ दिया, एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ऑर्डर ऑफ द मोनार्की। दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट the existing system. They started questioning about the existence of these men. They started questioning about the existence of their idea. Now let us see, as we have discussed, that these are the factors which helped in making of nationalism. The first factor, as I told you, is the rise of middle class. The second factor is the spread of ideology of liberalism. The third factor is the spirit of conservatism at the Treaty of Vienna, and fourth factor is the rise of revolutionaries. Now अगर हम 18th सेंचुरी के मैप को देखें, अगर हम 18th सेंचुरी के मैप को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि आज जहाँ पर बहुत सारे नेशन स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जो कि डिवाइडेड हैं किंगडम्स में, डचीज़ में, कैंटोन्स में, जो जिनके रूलर्स अपने होते थे, उनके अपने टेरिटरीज़ होते थे, ठीक है। तो उस समय कोई 18th सेंचुरी में ऐसा कोई नेशन स्टेट था ही नहीं, ठीक है। जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड आज एक देश के नाम से जाना जाता है, बट 18th सेंचुरी तक ऐसा कोई देश था ही नहीं, बल्कि ये लोग बटे हुए थे छोटे छोटे टुकड़ों में, और इनके छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो अलग अलग रूलर्स के द्वारा रूल किए जा रहे थे, राइट। दे डिड नॉट शेयर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। इनकी कल्चर भी एक दूसरे से अलग थी, जर्मनी की कल्चर अलग थी, इटालियन की कल्चर अलग थी। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग ग्रुप्स से थे, सिस्टम अलग था, ट्रेडिशन अलग था। द हैब्सबर्ग एम्पायर, नाउ हैब्सबर्ग एम्पायर क्या है? इट वॉज ए एम्पायर इन ऑस्ट्रिया। हैब्सबर्ग एम्पायर इज अ एम्पायर इन ऑस्ट्रिया, हंगेरी, इंक्लूडिंग द अल्पाइन रीजन ऑफ टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड एंड बोहेमिया। डेफिनेशन आई विल गिव लेटर ऑन। अब ये समझो कि हैब्सबर्ग एम्पायर एक 4-5 छोटे छोटे एम्पायर को मिलाकर एक बड़ा एम्पायर का पार्ट था, राइट। द हैब्सबर्ग एम्पायर विच रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगेरी, ऑस्ट्रिया हंगेरी उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट माना जाता था। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रिया हंगेरी का बहुत बड़ा पार्ट था, वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। पैचवर्क मतलब छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उसको मिलाकर आपस में एक बहुत बड़ा इलाका बनाया गया था। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप वॉज अ कॉमन डेडिकेशन टू द एम्पायर। अच्छा, इनमें जो कॉमन चीज़ थी, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, सुडेंटलैंड, बोहेमिया, इनके बीच में एक कॉमन चीज़ क्या थी? वो ये थी कि सभी लोगों का एम्पायर के प्रति एक वफादारी था। ऑल द पीपल वेर यू कैन से लॉयल टू द एम्पायर। यही एक कारण था कि लोग आपस में जुड़े हुए थे। अगर बाकी की चीज़ों को देखें तो वो एक दूसरे से कंप्लीट अलग थे, राइट। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन डेडिकेशन टू द एम्पायर, इवन दो देर वर मेनी डिफरेंसेस। हालांकि बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन कुछ एक कॉमन फैक्टर था उनके अंदर जिसने नेशनलिज्म को जन्म दिया, और वो कॉमन फैक्टर ये था। कॉमन फैक्टर ये था कि राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास जो थे वो क्वेश्चनिंग करने लगे अपर मिडिल क्लास से या हायर क्लासेस से कि वाई वी आर नॉट गेटिंग प्रिविलेजेस, वाई वी आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज़। सेकेंड, लिबरलिज्म का आइडिया, आज़ादी का ख्याल। किंगडम एक दूसरे से आज़ाद होना चाहता था, अपना पहचान बनाना चाहता था, एक बड़े राजा के अंडर नहीं रहना चाहता था। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण बना लोगों को आगे बढ़ने का। तीसरा यह है कि ट्रीटी ऑफ वियना और कंजर्वेटिज्म के स्पिरिट्स ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कब तक वो पुराने तरीके या पुराने सोच में जकड़े हुए रहेंगे। रिवॉल्यूशनरीज बहुत सारे जगह पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, रिवॉल्यूशन होने शुरू हो गए। तो ये भी एक कारण रहा कि यूरोप के अंदर में जो है रिवॉल्यूशनरीज का रोल जो है नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में हेल्प किया, राइट। So the first thing is aristocracy and the middle class. The first is the rise of middle class.
तो हम ये देखेंगे कि मिडिल क्लास कैसे राइज हुआ, कैसे ऊपर उठा. सो दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट. थैंक यू.